Hello and welcome to yet another episode of Shut up. We're Talking. और सौम्या, क्या तुम बताना चाहोगी कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ है? आज के टॉपिक पे तो हम आएंगे, but we need to vent a little bit. I think a little bit we need to talk about how today we are going to discuss कि कैसे हम अपनी माओ में टर्न होते जा रहे हैं. And we had the most mothership day of all time. We've been up since 7. We have been traveling for 8 hours. और उसके बाद भी हमारी डेडिकेशन. उसके बाद हम में से एक का आदमी बीमार पड़ गया है. उसको अस्पताल में भी हम रख कर आए. अस्पताल में भर्ती है वो. We are shooting this special episode for Mother's Day, and we have a lot of tea to dish about our moms. But before that, Soumya, can we talk quickly about this beautiful brand? It's called Everlight by Senko, and we're wearing it. You can see the dainty pieces on us. And it looks so stunning. ये हमने already decide कर दिया कि मैं और सौम्या same rings हम खरीदने वाले हैं इसके बाद में. promise rings हैं. ये हमारी promise rings हैं. वाग्मिता ने सोचा सौम्या के बंदे ने उसको रिंग दे दी तो तुरंत मुझे भी हमारी engagement ring lock करनी चाहिए. Yeah. So Soumya, what has been your personal relationship like with your mom growing up versus teenage years versus now? Growing up तो देखो ऐसा होता था. You don't know what your relationship with your mom is. ऐसा मम्मी ऐसा लगता है मम्मी एवर ग्रीन एवर प्रेजेंस नहीं होता कि इस इंसान के अलावा यही मेरा भगवान है, यही मेरा देवता है, यही मेरी अन्न देवता है. लाइक शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू. आई थिंक मॉम्स आर योर सेंटर ऑफ यूनिवर्स. मतलब दुनिया के आपका यूनिवर्स का सेंटर वही है. टीन्स में शी इज द वर्स्ट पर्सन एवर. हाउ डेयर शी टेल मी कि मुझसे 15 साल बड़े लड़के से मैं बात नहीं कर सकती. पापा को बता दिया आपने 35 साल के लड़के को मैंने टेक्स्ट किया तो. आफ्टर टेलिंग मी कि पापा को नहीं बताऊंगी. मुझे बता दे, पापा को कुछ नहीं बताऊंगी. यू हैव टोल्ड द वन पर्सन यू शुडंट हैव टोल्ड. एंड एज एन अडल्ट आई थिंक वी कैन बोथ अग्री कि मम्मी के साथ वो रिलेशनशिप हो जाता है दैट शी इज माय बेस्टी. योर मदर इज माय बेस्टी, माय मदर इज माय बेस्टी. दैट्स ट्रू. अभी हम ग्रीन रूम में तैयार होते होते मेरी मम्मी के साथ वीडियो कॉल कर रहे थे और चिट चैटिंग कर रहे थे. सो दैट्स हाउ आवर रिलेशनशिप is with each other's mothers as well. Actually. How has your relationship been since you've grown up in a joint family? तुम एक नहीं, तुम बहुत सारी माओं के बीच में बड़ी हुई हो. Yeah, that's true. I feel like I have two moms. One is my birth mother and the second is my chachi, because she has also had a huge hand in bringing me up. Because I'm from a joint family. So I feel like I get my personality from both my mom and my chachi. They're very, very fierce, very feisty women who never shy away from saying what they want. So I feel like I get that zing, that zest, little bit of spiciness from both of them. But हाँ, मेरी भी relationship मेरी मम्मी के साथ as a child तो obviously like I adored my mom. And I think कभी कभी ऐसा भी होता है कि you start seeing your mother as you grow a little older, you become a teenager. आप अपनी मम्मी को from a patriarchal lens देखने लगते हो या from an in-laws lens देखने लगते हो. तो like if you have in-laws or if you have like people in the family which don't think very well about your mother, then you sort of believe that about your mother as well. You have you heard that thing कि there's this saying called कि just because you judge your mother standing with your father will not save you from the fate of your mother. Yes. And that is true because मुझे लगता था मेरे पापा कितने cool हैं. Of course हर बात पे मम्मी की तो गलती होती है. And when you grow up you realize कि I'm sorry mama. I'm sorry queen, मैंने आपकी बुराइयां करी आपके पीठ पीछे आपके मुंह पे. Can we talk about how resilient women are as mothers? Because अगर इतना मुझे मेरा बच्चा सुना देता मैं कचरे के डब्बे में फेंक के आ जाती उसे. That's true. मैंने कितना सुनाया मम्मी को. For what? Yeah, and I think mothers are very forgiving. Bhai. Like forgiveness is a big part of being a mother, like forgiving your child again and again and again. Because I sometimes think about the kind of things I have said to my mom and I'm just like, I cannot believe I said लगा दूंगी सौम्या चुप हो जा. It's so jarring. और बोल दिया. Teenage, how did I even think of saying this to my mom? Now when I think of it, और अगर मेरे पापा भी अगर मम्मी सब कुछ कह देते I'm like, आप अपनी लिमिट्स में रहिए, घर मम्मी के नाम पर है. Can we also talk about कि मतलब from being a person who used to constantly fight with their own mothers growing up, now we fight for our mothers. Like that transition, can we talk about? पूरी साइकिल है. पहले मुझे ऐसा लगता था मैं पापा की साइड से खड़ी होती हूँ because
आप क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो, आपको क्यों इतनी बातें अफेक्ट कर रही हैं. एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ यार मतलब बेचारी की क्या गलती है. हर स्टेज पर मेरी मम्मी को उनके घर वालों ने फेल किया है, फिर उनके पति ने फेल किया है, और एट द एंड बच्चे भी फेल ही करते जा रहे हैं अटिल नाउ कि थोड़े बड़े हो गए हैं. तो नाउ गीत एंड आई डोंट से एनीथिंग टू हर. और वो भी थोड़ा ये है कि चलो अब नाउ शी डज थिंग्स, शी डज स्टफ, बट आई डोंट से एनीथिंग टू हर. एक पॉइंट आया था जब व्हेन आई यूज्ड टू फाइट एवरी बैटल फॉर हर कि अगर पापा ने कुछ कह दिया तो मियाँ बीवी की लड़ाई में काजी मैं हूँ. मैं बीच में बंदर जो सुलह नहीं कराता तो बिल्ली होगी. मैं एक बिल्ली को तो बर्खास्त कर दिया मैंने, अपने रूम में जाओ. सो लाइक देन इट बिकेम दैट. और फिर मम्मी ने अपने रंग दिखा दिए कि मेरा पति मेरा है. तो मैंने तो अब मैं बट आउट कर जाती हूँ. मैंने आपको इनफ सिखा दिया है कि आप ये सब खुद बोल सकती हो. मम्मियाँ थोड़ी थाली की बैंगन तो होती हैं. देखो अब मैं इसके बारे में और ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, बट ऐसा होता है कि मैंने पापा से आपके हित में लड़ाई की, दूसरे दिन आप पापा से गुलू गुलू क्यों कर रही हैं? एक दिन तो रुक जाइए. मेरी चुन्नी पकड़ाना जरा, पापा के साथ जरा मैं राउंड लगा कर आती हूँ. What do you mean? उन्हें मैंने खाना नहीं लगाया है 4 दिन से आपके चक्कर में. Dude, my mom is too funny, okay? So my dad used to like smoke, okay? My mom didn't like that habit of his, so she was like कि till the time you don't quit this habit, we are not going to eat food. तो मेरी all of us. हाँ, all of us. तो मेरी मम्मी ने आके मुझे बोल दिया कि हम दोनों खाना नहीं खाएंगे. I said yes, हम दोनों खाना नहीं खाएंगे. 1 घंटे बाद, बेटा देखो मेरा तो व्रत था, मैंने खा लिया है, तुम मत खाना. मैंने कहा ये मम्मी मैंने फलाहारी खा लिया है, तुम अपना अनाज छोड़ दो. क्यों? या सो लाइक अर्लियर आई यूज्ड टू डिफेंड हर, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर ही अच्छी हूँ इन बातों से. नाउ आई डोंट डिफेंड हर बिकॉज आई थिंक ओवर ईयर्स ऑल्सो ना मैंने रियलाइज किया है कि इट्स बिकॉज वी हैव ग्रोन अप. आई एम द ओल्डर चाइल्ड. माई मॉम एंड आई, मेरी मम्मी ने कुछ 2 साल ज्यादा ही गुजारे होंगे उस घर में, और 1 साल भी मैं उनके पेट में थी. तो मेरी मम्मी और मैंने नए घर में शुरुआत से लाइफ शुरू करी है. एंड वी हैव लर्नड द सेम थिंग्स, वी हैव ग्रोन अप टुगेदर इन दैट हाउस. तो जितना मैंने सीखा है आई थिंक उतना ही मेरी मम्मी ने भी सीखा ही है. और मैं अब उनके लिए क्या लड़ूं भाई. लाइक यू कांट फाइट. लाइक पहले लगता था कि हाँ मैं मेरी मम्मी को बचाऊंगी, अब थोड़ा पेट्रनाइजिंग लगता है कि इस औरत ने जो मुझे पाल पोस के बड़ा किया मैं इसको बचाऊंगी. Exactly, yeah. So I think a big part of growing up and growing older is realizing that you can stand with your mother every step of the way, but she still has to, you know, have her own journey, just like you have to have your own journey. But I think like one big thing I realized growing older is that my mom's also just a girl. It's so painful, that realization, to realize that she was once a girl with ambitions, with hopes, with dreams. And I think she had to sacrifice that so that I could have my ambitions and hopes and dreams. So what are your thoughts about that? यार I think my mom has sacrificed way too much. मुझे ऐसा लगता है कि as the औरत मैं जिंदगी में कभी किसी के लिए ये नहीं कर पाऊंगी. पर वो वैल्यूज भी मेरी मम्मी ने मुझ में इंस्टिल करी हैं कि ये किसी के लिए नहीं करना. Yes. मैंने करा है. I don't want this life for you. Yes. I love my mother way too much to have the life that she has led. Exactly. And she has made sure भाई कि मेरे पापा को उतना पिघला देना, एक नॉर्थ इंडियन आदमी को इतना पिघला देना कि मैं आराम से यहाँ बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ. It's the most liberal thing any woman in my generations have done. 100,000%. And I think that I owe it to my mom because मेरी मम्मी ने तो I think कॉलेज के बाद कुछ किया नहीं था एक्सेप्ट फॉर लाइक रेजिंग किड्स व्हिच इज अ बिग जॉब. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब आई वांट टू गिव इट बैक टू हर कि मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ. एट ऑल टाइम्स आई फील दैट. लाइक हाउ डू यू फील नाउ दैट यू हैव बिकम लाइक दिस फ्रेंड्स वाला थिंग. नाउ यू वांट टू डू लाइक स्टफ विद मॉम एंड शी हैज अदर कमिटमेंट्स. Oh yeah. My mom has like kitty parties and I'll call her and she'll be like मैं 10 मिनट में करती हूँ. That phone never comes back. What do you think about that now that your mom has like you know become a friend? मेरी मम्मी तो काफी embarrassing है. पहली बात तो मेरी मम्मी, और एक बार एक्चुअली हुआ था कि I wanted to talk to my mother about a certain relative. And I said I want to talk to you about it. Talking means obviously मुझे हताइयाँ करनी है मम्मी के साथ. मम्मी ने वीडियो कॉल उठाया, नाम लाइक कि हाँ और वो बुआ जी कैसी है, और मम्मी बोलती है अरे बुआ जी को हाय बोलो.
मैंने कहा मम्मी आपने फोन क्यों उठाया फिर, अगर आप उन्हीं बुआ जी के घर पे थे. तो भाई मेरी मम्मी काफी अनहिंज्ड है. शी हैज नो थॉट अबाउट रेपरकशंस, शी जस्ट डज थिंग्स. हाउ डू यू फील अबाउट द फैक्ट दैट हम दोनों जैसे अब हम इस वर्ल्ड में बड़े हो रहे हैं, सो वी हैव अ बैरियर, वी हैव प्रिटेंस, हमारी एक से लेयर्स ऑफ थिंग्स हैं कि हम कितने प्रिटेंशियस हैं, उसके बाद हम थोड़े डरे हुए लोग हैं, उसके बाद हम थोड़े ऐसे लाइक यू नो हमारी इनोसेंस कितनी नीचे है. विद मदर्स इट्स लाइक ऑन द surface. That's true. Yeah, my mom is very easy to read. And Yeah. she giggles a lot. Yeah, So if she same. has that giggle, you can tell from her giggle what she's thinking. Like she's very, very verbal. She's Everything is on the face. The like such honesty. You like मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उतनी honesty से लाइफ जीते हो तो लाइफ बहुत easy होती है. Like at least 50-60 पे थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में कम होता है because you're not pretending to be someone else. But मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं modern नहीं sorry joint family setups में that innocence or that in your face sort of thing is taken advantage of. 100%. As well. Because when my mom got married and came into our family, she was 20. And as a 20-year-old, she had like a lot of growing up to do, which she did in her sasural. And it shows that she never really got the chance to be just a girl. तो कभी-कभी like अभी मेरी मम्मी बॉम्बे आई थी, तो I for 2-3 days consecutively I said कि ना आप खाना, एक तो मम्मियों को मेरे घर में आके क्यों काम करना है. मैंने कहा आप अपने घर में काम करते हो, मेरे घर में आके आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं. मैं भी नहीं करती, आप क्यों कर रही हो? Exactly. So I for 3 days consecutively I took her on date nights. So I would take her to a new restaurant. We would try. I was like, just order whatever you want. Then I would take her for a foot massage. I would take her to get a pedicure, and I would just like take care of everything. And the joy on her face, like this one moment I remember very clearly, and I like had tears in my eyes because I was sitting or chilling, and I had to take a call. And my mom has all these dishes in front of her and she has a Diet Coke and she's sipping it and listening to music. And I was just like, when was the last time she got to just do this? Yeah. I take these things for granted because I grew up having this. Yeah. I grew up having this freedom. I grew up like, you know, I got to make this money for myself. But did she ever get a chance to do this for herself? You remember we went to like, we went some jewelry shopping together yeah. with my mom. Yeah. And my mom, I don't know, she has met everybody. People who have seen her with that set, she has told कि ये मैंने दिया है. People who have not seen her with that, she'll show photos of it. Yeah. And she's so excited. Of course, she has bought jewelry before. But that joy, that unfiltered joy, because there are no strings attached to this kind of like, you know, I will never get up like her husband. And like उनके आपस की बातें पति पत्नी में तो होती हैं ये बातें कि I will be like मैंने तुम्हें कितना दिया उसके बाद भी तुम ऐसे करती हो. She knows that there is no strings attached to that stuff. तो वो कितना खुश होती हैं. Like मैंने अभी रिसेंटली उनको कोई तो मेकअप का पूरा बॉक्स भेजा था. शी डिड लाइक अ अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें वो ना वो दिख रही है ना प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है. ठीक है. और वो बस she's just giggling. She's like ये देखो मेरे पास तो ये भी नहीं था, मेरी ये वाली लिपस्टिक हो गई. And she was so happy, man. She was so happy. I felt like मैंने किसी दोस्त को बर्थडे पे कुछ दिया है and this is the same level of happiness I had, you know. That's so yeah, I mean, finally Vagmata, we're coming to the crux of the whole thing. Yeah. Are we becoming our moms? I think becoming your mom is a fate that nobody can save you from. Yeah. The sooner you realize this, when was the first time you realized in your life कि मैं अपनी थोड़ी मम्मी की जैसी तो बनती जा रही हूँ. I think जब मैंने थोड़ा अलग रहना स्टार्ट किया था by like 24, 23, तो 23, 24 का थोड़ा ऐसा लगता था कि अरे यार मैं पापा जैसी बन रही हूँ. और एक दिन आप उठते हो और आप अपनी मम्मी जैसे बने हुए होते हो. Yeah. And I'm like, ये तो मैंने I did not see this coming because मैं हमेशा उस चीज से बहुत दूर भागती थी कि whatever my mom stood for, I love her, but मैं वैसी कभी नहीं बनूंगी. मेरा कभी कोई एडवांटेज नहीं लेगा मुझसे, कभी कोई ऐसे बात नहीं कर सकता. And in the end, when I stood there and when I was in that place, I behaved exactly like my mom. Like अगर मुझसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं वहीं पर खड़े होकर सुन लेती हूँ और उसको absorb करके घर आ जाती हूँ. Like I would never be able to reply to somebody I respect or somebody older than me. You've seen that. Yeah. You know, I don't do that. And that is exactly my mom's MO. Yeah. So what is that? When was the first time you noticed it? When I got into my first relationship. And I was like, ये sentences तो सुने लग रहे हैं. मेरा फोन क्यों चेक कर रही हो?
मैं एक आदमी का फोन क्यों चेक कर रही हूँ? मैं एक आदमी को धमकियां क्यों दे रही हूँ? ये कहीं से सुना लग रहा है. तो I do feel like that at that point I realized that, like, you know, like my mom is very vocal. If my mom is angry, the whole house will know. Damn, that's cool. The house shakes when my mom was angry. Like, she is that type of anger, which I think is great. Get it out of the system, girl. So I feel कि when I saw myself becoming that, which I swore कि मैं ऐसी तो कभी, I will never become this person and I will never react like this, because my dad is very like cool and composed and all of that. तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी मम्मी के जैसी बनती जा रही हूँ. एंड देयर वर सो मेनी थेरेपी सेशंस वेयर आई वाज लाइक, यू नो, आई एम बिकमिंग लाइक माय मॉम, एंड माय थेरेपिस्ट वाज लाइक, ओके सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एंड आई एम लाइक, हाँ एक्चुअली तो क्या बुराई है? मतलब अगर आप अपने सिस्टम से कुछ निकाल रहे हो तो उसमें क्या बुराई क्या है? लाइक व्हाट इज सो बैड अबाउट बीइंग लाइक योर मॉम? यू नो, आई एम हर चाइल्ड, देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट शी हैज पास्ड ऑन टू मी. लिटिल बिट हियर एंड देयर, थोड़ी हेरा फेरी तो हो ही जाती है. कर लिया तुमने 2-4 फोन चेक रात में बैठ के, क्या हो गया उसमें? थोड़ा बहुत कलेश कर लिया तो क्या हो गया? My mom is exactly the opposite of your mom, and this is why I became very stark opposite. It was my mission in life. And can we talk about how your parents, जैसे घर वाले तो करते ही हैं, आपके somebody who is a partner, पापा भी ऐसे कभी कभी बोल देते थे मुझे कि तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो मम्मी की तरह चूल्हा चौका करोगी फिर. आपके घर का कुछ चूल्हा चौका कर रही है वो. What do you mean इसमें? एंड बचपन में ऐसा लगता था this is the worst fate a woman can meet, this is the worst fate a woman can meet. But don't cite my mom as an example. You're making her do this. She wanted to study, she wanted to have a job. You didn't want her to do that. Like, one thing I really took from my mom was her perseverance, yaar. Didn't want that, honestly. पर वो आपकी जीन कोड में combine हो जाती है, वो आप कुछ नहीं कर सकते. What did you get from your mom that you didn't want but it's just there now? Yeah, I feel like my mom has had a lot of just bad luck in life, because my mom was so ambitious. Like, she's like my nana. My nana was a very ambitious, industrious person. और मेरी मम्मी बहुत ambitious थी. मेरी मम्मी ने कम से कम 7 से 8 failed businesses किए हैं. मतलब that's cool, yaar. Yeah, so she never had a fear of failure, a fear of embarrassing herself. She never had a fear कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. She was like कि मुझे अपनी life के साथ कुछ करना है. That's crazy. At that time, correct. And I grew up watching somebody who's like, अच्छा ये business नहीं चला, move on to the next one. ये नहीं चला, move on to the next one. So I always knew कि भाई, मतलब I never want to depend on a man, because my mom's one big lesson, the biggest lesson she gave to me was that, बेटा अपने अलावा किसी पे निर्भर मत होना. You know, always depend only on yourself. Make money for yourself. Spend on yourself, spend for yourself, because nobody else is going to do that without any conditions attached. For sure. So that was the biggest learning I took from my mom. What was your biggest learning that you took from your mom? यार, मेरी मम्मी ने बहुत बचपन से मेरे अंदर इम्बाइब किया था कि क्योंकि मैं मेरे पापा जैसी हूँ बहुत लेवल पर. हम दोनों लाइक यू नो आर्टिस्टिक हैं. माय डैड इज अ गुड पेंटर, ही इज अ राइटर, he does so many things, but at the end of the day those things drain him. Those things, he never sees end to stuff, you know. अगर पेंटिंग करी तो वो पेंटिंग आधी है, पोएम लिखे तो वो पोएम आधी है. मतलब मैं और मेरे पापा बहुत सिमिलर हैं. तो she knew that she can't change my father, so she molded me in a way कि उन्होंने मुझे जब भी कोई ऐसी बात होती थी, जब भी when I never saw end to something, she never like embarrassed me for it. She never did anything. She was like, ये नहीं हो रहा ना, कुछ और करो. जब तुम इतनी सारी चीजें कर ही सकती हो, इफ यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसमें से कोई सा भी चुन लो जिसमें पैसे बन जाएं. शी नेवर प्रेशराइज मी ओवर एनीथिंग. एंड जब भी मैं कहती हूँ ना मुझे ये टेंशन हो रही है, मुझे ये काम करना है, मुझे वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, हर एंटायर थिंग इज जितना हो रहा है उतना करो. इससे ज्यादा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. दैट मी एंड माई डैड वी बोथ डोंट अंडरस्टैंड. बट एटलीस्ट अब मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बोला है तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझता है कि कब ब्रेक लेना है, कब छोड़ना है, किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है. सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लेसन दैट आई टुक फ्रॉम हर. कि और दूसरी, माई मॉम ऑलवेज इनकरेजेस मी टू हैव फन. भाई मैंने जैसे पापा को कभी बता देती थी ना कि मैं ट्रिप पर हूँ, मेरे पापा ऐसे हो जाते थे कि मतलब ठीक है, घर जाके मूड खराब कर दिया. नहीं, आपका भी खराब है, मेरा भी खराब हो गया. अब हम दोनों सड़े बैठे हैं. और मेरी मम्मी को अगर बता दो, मेरी मम्मी वुड बी लाइक, अच्छा क्या किया, फोटो भेजना, ये करना, वो करना. अगर मैं इस ट्रिप के बाद दूसरी ट्रिप पे चली गई और इसके बाद तीसरी में भी चली गई, शी वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर मी. शी इज हैप्पी आई डोंट वर्क. रिमेंबर व्हेन हम लोग अभी रिसेंटली, हम आज ही शिमला से आए. पहली बात तो हम लोग शिमला में बैठे थे, हिमाचल टैन, और उसके पहले मैं थी बुडापेस्ट में.
तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया तो एंड आई वाज एम्बैरेस्ड, आई वाज लाइक यार मैं तो शिमला आ गई, तो मम्मी बोलती तुम्हारे पाँव में तो भंवरा बैठा हुआ है। ओके ओके गर्ल थैंक्स। हाँ मैंने भी मम्मी को फोन किया, मम्मी इज लाइक मजे करो, बढ़िया। अनीश कैसा है? बढ़िया है। उसके माय मॉम वाज, उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो रही। Premonition. हाँ मतलब Can we also talk about like how the fact that we really underestimated how cool our moms are? Especially जब हमारी मम्मियों को हमारी relationships के बारे में पता चला, the fact that we wanted to stay a certain way with our partners, the fact that we had partners, the fact that we chose to date them for such a long time, that we chose to like you know be in a certain way with them in society, in front of society. हम लोग ने नहीं छुपाया अपने partners को society से. And the fact that both our mothers were like, हम पापा से बात कर लेंगे, तुम मत करना, मैं बताऊंगी पापा को, अपने तरीके से हम बताएंगे पापा को. Yeah, dude, like that. Now that we've come to that point, how does it feel like to have a whole as human as a buffer between you and your father and you and the whole patriarchal society? एक ही इंसान खड़ा है उसके बीच में. मेरी मम्मी कितना करती हैं, कितनी बातें करती हैं भाई पापा से, अपने बारे में कम. आई थिंक वो हम मेरे बारे में ही करती हैं कि ये हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैनेजिंग सो मच स्टफ. बेब इनको कॉर्पोरेट, जैसे इनको वालों को कॉर्पोरेट जॉब देनी चाहिए मेरी मम्मी को मैनेजमेंट की यार. ईगो मैनेज करना भाई, इतने बड़े आदमी का ईगो मैनेज करना इज सो. And they keep underestimating that woman. Yeah. She's managing you entirely. Exactly. पापा को पता नहीं है. आप मैनेज हो रहे हो. आप मैनेज हो रहे हो. अच्छी मैनेजमेंट की यही तो निशानी है. आपको पता ही नहीं. आपको नहीं पता आपकी बॉस है, पर वो है. Exactly. I think the best thing I imbibed from my mom was that I love dressing up. शुरू में इतना नहीं था, बट मतलब मेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ माई मॉम इज कि मम्मी ऐसे डार्क कलर की लिपस्टिक लगा रही है, एकदम चटक रेड, और मेरी मम्मी एकदम गोरी चिट्टी है, ठीक है, तो उन पे चटक रेड बिंदी, चटक रेड लिपस्टिक, बाल में गजरा, एंड शी इज लाइक मैं जा रही हूँ. लाइक वो शी इज द हॉटेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन माय लाइफ. दीवा भाई. मेरी मम्मी एकदम ऐसे थोड़ी डस्की है, बढ़िया चॉकलेट ब्राउन मोका कलर की लिपस्टिक लगा के, अपने वही पंजाबियों वाले ऐसे हेवी सूट पहन के, and उस पे jewelry bro. I really want to commend my mother because limited means में we grew up और उनके पास limited jewelry थी, but the way she styled it, I just knew that woman has a lot of like you know sense of style in her. क्योंकि उन ब्लैक इयररिंग्स के साथ उन्होंने किसी तरह से मैच करके कोई सी चेन में डाल के कोई सा और गोल्ड पहन लिया, बैंगल्स को इस तरफ से इधर से हटा के कुछ ना कुछ, लाइक जस्ट मेक इट हैपन, लाइक एन एवरीडे ज्वेलरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. I learned that from her. That's true. Even I learned the concept of everyday jewelry from my mother, and she again, like, she had very limited pieces, but those limited pieces she chose so that they could go with everything. Like, I feel like, you know, Everlight by Senko is so good at everyday jewelry, because look at Soumya's piece. Like, these are such dainty, simple designs. And but this is so me. It is so you. Like, I immediately saw it and I was like, this is just perfect. We just knew that this is ये रानी दीवा कुमारी का हाथ. This is entirely Vagmita. And when I saw this, I was like, अगर मैं यहाँ से ये ले जाऊँ. Guard खड़ा है बाहर. Just saying. So when Everlight Senko came to us, they wanted to collaborate for Mother's Day, and when we saw the jewelry, I think I've seen this kind of ring on my mom, I think, first. Yeah, and I think our moms just had this non-try-hard sense of fashion. They just knew style. Not even fashion, I would say, just like effortless style, and styling like minimalist or maximalist pieces so well with their everyday wear. मेरी मम्मी को मैंने कभी बिना अच्छी ऐसे ज्वेलरी के साथ नहीं देखा. मेरी मम्मी हमेशा मुझे चमचम करती दिखती थी. You know, वो अगर घर पे कंगन भी खाली पहन रही है, चूड़ियां भी गोल्ड की पहन रही है, मैं बचपन से सोचती थी मुझे भी ये गोल्ड की चूड़ियां चाहिए. मुझे जब दाम पता चले तो मुझे लग गया था कि अभी 20-25 साल है इसके लिए. बट आई यूज्ड टू ट्राई ऑन हर ज्वेलरी एज अ चाइल्ड. मम्मी का मंगलसूत्र मम्मी के यहाँ तक आ रहा है, मेरे यहाँ तक आ रहा है. पर मैं डेक अप होके जरूर जाती थी. मेरी मम्मी ऐसी मम्मी की धड़कन अटकी रहती थी कि ये क्या गिराएगी. एंड रिमेंबर द अदर डे व्हेन वी टुक बोथ आवर मॉम सेपरेटली, लाइक मेरी मम्मी के साथ भी हम ज्वेलरी शॉपिंग जा चुके हैं, और सौम्या की मम्मी के साथ भी हम ज्वेलरी शॉपिंग जा चुके हैं. ना मदर्स एक्चुअली हैव द सेम सेंस ऑफ लाइक दे वर लाइक कि ऐसी चीज लो जो हर चीज के साथ जाए.
ऐसी कोई चीज मत रखो जो तुम्हारी अलमारी में ही बैठे रहे, which is why we love this brand so much, because all these pieces are so versatile, whether you're wearing it at work, whether you're wearing it at home, whether you're wearing it for a party, whether you're wearing it for an after party, to the office. It goes with everything so well. I would wear this, honestly, I would wear this, like this is such a perfect cool office look. Yeah, it is. You know, such minimal dainty pieces. Love it. And if you just wear a dress on it, if you go to a party like after this in the same piece, it just goes same so well. Piece, yes. And I think that is the most convenient thing about everyday jewelry. If you take it off, if you keep it, बार उतारना गिराने में मैं तो कम से कम कुछ 10-15 लाख रुपए का गोल्ड अभी तक खो चुकी होती. Can we also talk about how easy it is to wear? Yep. Literally took us like 5 seconds. Yeah. For two lazy people like us, it's the best thing. So like we were talking about mothers being a barrier between the world and like you. तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को ही बताया था अपनी रिलेशनशिप के बारे में, एंड आई टोल्ड हर दैट मॉम आई लाइक दिस गाय, एंड माई मॉम विद द स्माइल शी जस्ट न्यू. बट द कूल थिंग इज कि उन्होंने कभी मुझे पेस्टर नहीं किया कि लड़का कौन है बता मुझे ये वो. शी जस्ट वॉज लाइक ओके माई डॉटर इज यंग, शी इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, शी इज हैविंग फन, शी इज मेकिंग फ्रेंड्स, इट्स फाइन. लाइक शी वॉज रियली चिल अबाउट इट. And then when I told her कि like I'm seeing this guy, I like him, I see a future together with him, तो she's like हाँ okay good. और तो मैंने कहा मतलब you know I want to travel with him to really get to know him as a person, क्योंकि आप ऐसे खाली dates पे जाके नहीं कर सकते. You have to travel with that person, you have to like you know spend time with that person. तो she's like हाँ वो तो करना ही चाहिए. मैंने कहा मेरी माँ इतनी कूल है मुझे पता ही नहीं था भाई. एक्चुअली एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंट लाइक मम्मी तो कूल है ही, बट ऐसा होता है ना कि जैसे पापा या फिर कोई भी घर का जो आदमी या इवन दादी वगैरह है वो समाज का ही पार्ट है, वो उस पितृसत्ता का ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है हम में. दैट्स ट्रू. क्योंकि वो हमें इंटरनली एज अ वुमन नहीं जानते हैं. लाइक माई मॉम नोज मैं दुनिया में कहीं पर भी मुझे कोई छोड़ के आ जाए मैं वापस आ जाऊंगी अपने घर. यू नो माई मॉम हैज दैट मच कॉन्फिडेंस इन मी. उनको थोड़ा गीत का डर लगता है 1 मिनट के लिए कि कहाँ गया, लेकिन मेरे लिए वो कभी नहीं डरती, बचपन से भी नहीं डरती थी. बिकॉज शी वाज लाइक यू आर ऑलवेज लाइक डेफ्ट विद पीपल, कि तुम किसी से भी बात करके कहीं से भी कहीं पे भी चली जाती थी, कुछ भी कर लेती थी, तो तुम्हारी कभी मुझे टेंशन होती ही नहीं थी. एंड ऑन द फ्लिप साइड माई डैड वॉज ऑलवेज वरिड अबाउट मी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. आई थिंक उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है तो उनको लगता है, और मम्मी ने मुझे इंटरनली देखा है. So that way I think your mom has so much confidence in you, it doesn't matter who is on the other end, it's about you. Absolutely. Yeah, I think like my mom just has this crazy faith in me. Yeah. You know, and I think that faith is the reason why I'm able to be so loud and verbal about my opinions, because मेरा core बहुत strong है. True. I have never questioned my opinions. Like with my mom, how open and verbal she's been with her opinions. I'm like हाँ भाई ऐसे ही तो होती हैं औरतें. हाँ. You know? मैंने तो नहीं देखी, मतलब मेरी तो मासी वासी ऐसी थी. So my mom is the elder daughter, तो मेरी मासी is like your mom and my mom is like my, you know, you've met her. She's very एकदम ऐसे शांत, introverted, docile औरत जैसी थी वो. Now that she's grown up, वो जब बड़ी हुई है तो वो मेरी तरह थोड़ी थोड़ी बन रही है. wherein she fights and my dad keeps telling me कि ये तुम्हारी हरकतें हैं, ये तुम्हारी जबान है, ये तुम्हारी माँ की है ही नहीं. हाँ पापा मम्मी ऐसे बोलेंगे पेट्रियार्कल, लेकिन मैंने ही सिखाया है. एक बात बताओ. अच्छा बहुत हमने ये चर्पी और अच्छी बातें कर ली. वो तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी किस बात पे लड़ाई होती है बहुत ज्यादा, और ये पैटर्न होता है, यू रिपीट द पैटर्न विद योर मॉम, इट नेवर गोज अवे. आई थिंक तुम पहले बताओ, मैं तब तक सोचती हूँ कि मेरी किस बारे में मम्मी से बहुत. यार मेरी मम्मी से पता है कभी दो तीन जो टॉपिक्स पे होती है वो यही होती है. पहले तो आपने मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया, और उसके बाद आप मुझसे कह रही हो कि पापा को बुरा लगेगा. हाँ पापा को बुरा लगेगा. तो क्यों बनाया मुझे इंडिपेंडेंट? जब मेरे अंदर वो लेंस ही नहीं है सोचने का, तुम ही ने बोल के हटाया वो लेंस. और अब जब नहीं है तो मुझे फोन करके कह रही हैं लोगों को लग रहा है तुमने लड़के के साथ फोटो डाल, आपके दामाद के साथ, फियांसे के साथ फोटो डाली है. लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने लड़की की शादी कर दी बिना बताए. अरे तो क्या हो गया यार. सो व्हेन शी थिंक्स लाइक, और मैं समझ सकती हूँ आप उस समाज का हिस्सा, आपको लगेगा, बट दैट इरिटेट्स मी अ लॉट. और हम रोज लड़ते हैं इस बारे में. मेरी मम्मी के से लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि मम्मियाँ थोड़ी थाली की बैंगन तो होती हैं. ठीक है, पलटू तो है मम्मी, क्योंकि पति की दीवानी. और मतलब मेरे सामने तो मम्मी से हाँ कोर्ट मैरिज ही करनी चाहिए, इतने तो पैसे ही वेस्ट नहीं करने चाहिए वो. और फिर पापा बोलते हैं कि तुम फेरे नहीं करोगी, तो मम्मी हाँ फेरे तो करनी चाहिए. मैंने कहा यार आप डिसाइड कर लो ना आपको क्या चाहिए.
तो मम्मी का ये है वीकनेस है कि मम्मी को डिसएग्रीमेंट में कभी नहीं ओ बीच में यार। आना। मम्मी नहीं चाहती कि कोई बोले कि भाई हाँ इसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो मम्मी तो अपने आप को क्लीन स्लेट पे रखना चाहती है कि भाई जो भी विनिंग साइड है मैं उस साइड। अगर यहाँ रैपिड फायर हो गया और सबका फेवरेट इंसान मेरे फैमिली मेंबर में मेरी मम्मी ना हुई, तो शायद मेरी मम्मी ऐसे तड़प तड़प के वो हो जाएंगी कि कैसे मैं फेवरेट नहीं हूँ सबकी। यू नो शी इज सो यूज्ड टू ऑफ बीइंग कि मैं सबके बैलेंस मेंटेन कर लूं। आई आल्सो डोंट लाइक दैट। हाँ, तो ये मम्मियों का थोड़ा तो फ्लॉ होता ही है कि लाइक बीइंग द परफेक्ट वुमन, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल्सो क्योंकि उनको पता है कि अगर वो थोड़ी सी भी इम्परफेक्ट गई तो शी विल बी पुट अंडर द माइक्रोस्कोप। ट्रू। तो इट्स आई गेस लाइक मैं समझ सकती हूँ एज अ ह्यूमन, आप समझते हो लाइक यू नो लाइक माई होल जब ये पूरा रिलेशनशिप ही ऐसा था दैट आई स्टार्टेड हर knowing her as my mom and now I see her as a friend, as a human being. तो जब ये सब वो होता है ना, तो मैं मम्मी के मैं पापा के ग्रे एरियाज को ऐसे बोलती हूँ, आप ऐसे हैं, आपने मेरी लाइफ में ये किया है। और मम्मी से मैं ऐसे कहती हूँ, मम्मी थोड़ी ग्रे एरिया है आप में। इट्स ओके बेब, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हर इंसान में फ्लॉ होती है। मैं अपनी मम्मी से वो भी नहीं बताती, पता है उनका फ्लॉ भी मैं ऐसे डिस्कस करती हूँ जैसे मम्मी ने बच्चे को समझाते हैं। एक तो पहली बात तो आई हैव ग्रोन अप हियरिंग माई मदर बीइंग लाइक तुम्हारे पापा ने ये नहीं किया, तुम्हारे पापा ने वो नहीं किया, तुम्हारे पापा ने आज तक ये नहीं दिलाया, तुम्हारे पापा ने वो नहीं दिलाया। और फिर मेरी और जब पापा की लड़ाई हो, पापा देखो तुम्हारे अच्छे आदमी तो हैं, आज पापा की आंखें थोड़ी नम थी, आज पापा थोड़े उदास लग रहे थे। मैंने कहा दैट मैन वाज नॉट लुकिंग उदास, आप मुझे ये तो मत ही बोलो। केयर करते हैं तुम्हारी, तुम दोनों एक जैसे हो। मम्मी मुझे मार दो, मम्मी मेरी चिता को आग तुम ही लगा दो। आई थिंक माई मॉम फाइट्स विद मी सो मच बिकॉज आई लुक लाइक माई डैड। my worst thing my mom has said to me is this only. और मम्मी को पता है वो कहाँ हिट भी करती है, पता है। और मम्मी ने सबसे पहले I did not realize my eyebrows were thick till my mom said तुम्हारी eyebrows तुम्हारे पापा की जैसी। I was like what does that mean? What does that mean? मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला तुम्हारी आंखें बड़ी अंदर अंदर धसी हुई है पापा की तरह। ये बात क्या आपको नहीं सोचनी चाहिए थी शादी करने से पहले कि आपकी लड़की की आंखें धसी निकल सकती हैं? तुम्हारी तो इतनी बड़ी बड़ी बाहर है। Yeah. मेरी धस गई भाई। That's true. क्या आपकी मम्मी भी प्रोफेशनल होल्डर है? क्यों भरा पड़ा है मेरे सारे स्टोर रूम्स? Can I quickly talk about the fact कि एक बार मैंने अपने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई वाज लाइक ये सब PR का स्टफ है। और उसमें क्या थे, स्क्रंचीज, फ्लफी स्लीपर्स, ऐसी चीजें जो PR पैकेजेस में आती है। और मैंने कहा कि यार जस्ट लाइक लेट अदर पीपल हैव थिंग्स व्हिच आर जस्ट लाइक अनटच्ड, देयर इज नो पॉइंट। मेरी मम्मी को पैनिक अटैक आ गया कि मैं चीज़ें कैसे गिव अवे कर रही हूँ उनके सामने होते हुए। भाई इतना एम्बैरेसिंग था। मैंने 3-4 फ्लफी स्लीपर्स रखी हुई थी, तो मेरी एक दोस्त ट्राई कर रही है, दूसरी दोस्त, तीसरी लाइन में कौन है? मेरी मम्मी। मैंने कहा आप क्यों ट्राई कर रहे हो, चप्पल आपके साइज की भी नहीं है। आपको चाहिए भी नहीं भाई वो। ये स्क्रंची, मैंने कहा मम्मी ये स्क्रंची कहाँ लगाओगे आप? मेरे तुम एक बात बताओ, तुम मेरे घर जाओगे, ऊपर स्टोर रूम में एग्जॉस्ट बिना किसी तार के क्यों पड़ा हुआ है, नंगा बेचारा, धूल छाक रहा है। मेरी मम्मी ने हमारे पुराने खराब म्यूजिक सिस्टम के लिए 3 शेल्व्स लगवाई हैं। क्यों? क्योंकि चलता नहीं है, दिखता तो अच्छा है। मेक इट मेक सेंस। क्या तुम्हारी मम्मी भी बहुत ज्यादा क्रॉनिक शॉपaholic बायर है? यस मेरी मम्मी बहुत है। यस। मैं खाली प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट को जानती हूँ जो कपड़े 2 बार रिपीट नहीं करते हो, और तीसरी उस कतार में मेरी मम्मी है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी मैं मम्मी को वो कुर्ता पहने हुए देख लेती हूँ जो मम्मी 25 साल पहले भी पहनती थी। It's one kurta. I get that. As a woman, I get that. There's one kurta. Bloody that one kurta which doesn't go anywhere. और मेरे पापा ने पता है मुझे 3-4 साल पहले ये बात बोली भी थी कि मम्मी को तुम कहती हो कपड़े, तुम मम्मी के लिए कपड़े भेजती रहती हो और तुम कहती हो मम्मी को दिलाओ दिलाओ दिलाओ, तुम जाके ऊपर देख लो अपनी अलमारी। मैंने अपनी पुरानी अलमारी खोली, उसमें नीचे भरे पड़े हैं कपड़े, सूट पे सूट पे सूट है। नाम कि मम्मी क्यों नहीं पहनती? मम्मी ने कहा मैंने पहना था अवध क्लब की मीटिंग में, फिर उसके बाद अब यही शक्ति क्लब की मीटिंग में थोड़ी पहन के जा सकती हूँ मैं। Yeah. नाम बिल्कुल सही है। I have seen my mother buy clothes that I have never seen her wear till date. Yeah. Why do you buy? एक बार हमारी अलमारी में सीलन पड़ गई, उसके बाद मुझे पता चला, मैंने कहा मम्मी आपके पास ये कपड़े भी हैं? ये तो मैंने कभी देखे ही नहीं भाई। मैंने मम्मी के लिए लेकिन अब धीरे धीरे ना टॉप वगैरह खरीदना बंद कर दिया इतने महंगे वाले, क्योंकि मेरी मम्मी 2 बार पहनती है और तीसरी बार उनको लगता है कि मैं तीसरी बार थोड़ी पहन सकती हूँ यार ये कपड़े। बट वो फिर गिव अवे भी करना होता है ना, जो हाँ। उनसे होता नहीं है। They can't part with They things. can't part with, every action has equal and opposite reaction. मेरी मम्मी होर्डर
और मैं मेरे घर में एसेंशियल आइटम्स भी फेंक देती हूँ गुस्से में आके या ओवर स्टिमुलेट। आज अगर मैं ओवर स्टिमुलेटेड हूँ तो मेरा घर आधा क्लेंज होने वाला है। हाँ या आई हैव बिकम एन ओवर क्लेंजर। मैंने एक बार अपने बॉयफ्रेंड का ट्रिमर का चार्जर फेंक दिया क्योंकि वो ऐसे लहरा रहा था कहीं पर एंड वाज लुकिंग वेरी क्लमजी कि इस ड्रॉअर में क्या कर रहा है, उठाया और फेंक दिया। और फिर 3-4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद कोई बात हुई एंड ही वाज लाइक मेरा ड्रॉअर मैंने यहाँ पे रखा था, तुम्हें दिखा? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा अनीश, मैंने देखा था और मैंने ही फेंका था वो। और अब मैं कैसे हूँ एक्सेप्ट करूँ यार। अब मुझे ऐसा लगता है जब वो थोड़ा गुस्सा हुआ ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि घर में आदमी गुस्सा होने लगता है, इसीलिए मम्मी होल्डर है कि कोई चीज ना मिले। एक तो घर आपका भी है, करेक्ट। आप मेरी मम्मी से क्यों अपने डॉक्यूमेंट मांग रहे हो पापा? हाँ एग्जैक्टली। आपकी चेस्ट का एक्सरे 10 साल पहले का मम्मी क्यों संभाल के रखेंगे, आप क्यों नहीं संभाल के रख रहे? And I think it's also emotional hoarding, a lot of it. Like my mom has all of my grandmom's sarees, Damn. all her makeup. Like it's because like she just, I think they were not able to retain a lot of Yeah. presence of their parents and their youth, which is why they retain it through memories and through objects. Yeah. तो वो yeah. वो मतलब वो मेरी मम्मी कभी फेंक ही नहीं पाती है, तो नाउ आई एम जस्ट लाइक ठीक है यार इट्स फाइन, कर लो होर्डिंग। और क्या तुम्हारी मम्मी भी ऐसी है या आई डोंट नो, मतलब मेरी मम्मी का तो ये ट्रेट है कि मेरी मम्मी के कम से कम एक टाइम पे 15 अलग अलग डॉक्टर्स हैं। एक होम्योपैथी डॉक्टर है, एक नेचुरोपैथी डॉक्टर है, एक एक्यूपंक्चर डॉक्टर है, एक एस्थमा का डॉक्टर है, जो मम्मी को है नहीं। मम्मी को एस्थमा नहीं है। तो तुम समझ पा रही हो, साइकोसोमैटिक। हाँ साइकोसोमैटिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को चाहिए प्रॉब्लम्स लाइफ में, तो अगर घर में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है तो मेरी मम्मी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स ढूंढने लग जाती है। एंड वो पीकू में अमिताभ बच्चन नहीं होता कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, तो मम्मी शॉक हो जाएंगी कि ऐसे कैसे सब नॉर्मल है। भाई मेरी मम्मी, माय मॉम इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। वो क्रॉनिकली बीमार रहती हैं किसी ना किसी बात से, उनको पीसीओएस पीसीओडी, तुम थायराइड से लेकर ब्लड टेस्ट में जितने भी पॉइंटर्स आते हैं एनीमिया तक का, वो मेरी मम्मी सब A to Z फिल करती हैं। पता है उनकी सारी रिपोर्ट्स खराब आती हैं। और पता है उनसे अगर बोल दो ना कि आप आज सेब खा लोगी, मेरे सिर पे चढ़ता है सेब। मुझे उलझन होती है फ्रूट खाने में। ओके खाना खा लो, नहीं वो भी नहीं खाने का मन करता। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये औरत ड्रिप के साथ कैसे नहीं चल रही है। तो मम्मियों का मुझे बीपी हो गया, मैंने कहा आपको नहीं है बीपी, योर बीपी इज नॉर्मल, जस्ट सेइंग बीपी इज नॉट मेकिंग इट कूल। पहले तो अटेंशन, शी वांट्स अटेंशन कि मुझे देखो मैं तो बीमार हूँ, हाँ। तो मुझे अटेंशन दो। और मेरी मम्मी पता है, मेरी मम्मी फोन नहीं करती है। पता है अगर वो बीमार, मुझे कैसे पता चलेगा आप बीमार हो? ओ हाँ, ओ फक दैट, तुमने फोन नहीं किया। हाँ तुमने फोन नहीं किया, मैं इतनी बीमार थी मैं इतने दिनों मुझे से, कैसे मैंने कहा पता मुझे होगा? कैसे पता होगा भाई? आप पापा के साथ लड़ाई होती है तब तो दूसरे सेकंड पे फोन कर देते हो आप। मुझे 3 दिन से बुखार है। या अच्छा तो ये कौन बताएगा? नहीं हाँ। तुम पापा या गीत से पूछ लेती। और फिर अगर इनको बुखार है तो फिर ये बुखार वाली हरकतें तो है नहीं कि आप सुबह सुबह ही सफाई में पूजा में लग गई। आई हैव नेवर सीन माय मॉम नॉट वर्क। या मैंने कभी नहीं देखा यार। मैंने अपनी मम्मी को कभी चिल करते हुए नहीं देखा है लाइफ में। हाँ मी नीदर। मेरी मम्मी माला जपते हुए भी चिल नहीं कर पाती है। तब भी उनका एक कान खुला मेरी रहता मम्मी वेकेशन पे भी पता है कुछ ना कुछ ऐसे हाथ में लेकर जाती है ताकि वो किसी को कुछ ना कुछ बना के देती है। रहे। मम्मी वेकेशन पे क्यों सफाइयां कर रही है? मैंने किसी कहा और के घर की आप सफाइयां क्यों कर रहे हो? Airbnb में क्यों झाड़ू लगा रहे हो? काम डाउन। अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगेगा हम जंगली ऐसे रहते हैं। परसेप्शन या हमेशा सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। एंड आई थिंक वो फिट होता है ना इतना उनके दिमाग में कि अब मैं ये जज कर सकते हैं हम यहाँ बैठ कर कि वो क्यों सोचती हूँ लोगों के बारे में। मुझे लगता है जिस इंसान को बचपन से उसका लेंस ही नहीं मिला अंदर देखने भर का, वो तो बाहर की दुनिया से ही अपने आप को देखेगा यार। एंड आई फील लाइक अनदर थिंग दैट वी रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, व्हिच वी वर थिंकिंग अबाउट डिस्कसिंग, इज दैट कि मम्मियों पे ही सारा बोझ जाता है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो सारी वो गलती के बोझ हमारी मम्मियां उठाती हैं, क्योंकि आवर मदर्स हैव बीन एट होम रेजिंग अस। इट्स बिकम देयर प्राइमरी जॉब। मतलब पापा फ्रीलांसर है उनके इन रेजिंग अस। मम्मी की फुल टाइम जॉब है, पापा मेरे फ्रीलांसिंग करते हैं एज अ फादर, मूनलाइटिंग एज अ डैड एट नाइट। तो अब और अगर कुछ गलत हो जाए तो सिर्फ मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी भाई बचपन में। जैसे कि अब कुछ गलत हो जाए तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर यार। तो मैं चाहूंगी कि मेरी मम्मी अभी भी मेरा बोझ उठाए थोड़ा, कि मेरे गलत डिसीजंस में भी मम्मी कहे कि नहीं बेटा मेरी भी गलती है साथ में। या बट व्हाट हैज लाइक योर मम टॉट यू अबाउट मदरहुड, like, or being a mom, because this is our Mother's Day themed episode. So what has
your mother taught you about like what being a mother is like? I think a good parent is an accepting parent. Whatever you bring to that parent, they have to accept you. चाहे वो तुम कुछ भी तुम कह दो कि तुम दफ्ती हो, तो मम्मी कहेंगे बेटा कहाँ साइन करना है तुम्हारे ऊपर. Like you know that's how accepting. मेरी मम्मी ने मेरे कितने सारे phases देखे हैं भाई लाइफ में, पंक, ईमो और पता नहीं क्या 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 करती थी मैं. And she has accepted me through all of it. थोड़ा कभी हंस देती थी मुंह पे मेरे, but she was very accepting. And I think वो मैंने देखा है कि as a mother, I think that is the biggest thing you can do for your child. What have you learned? I think I've learned that no matter what, I can always go back to her. Yeah. You know, like of course acceptance is the reason for that. But मुझे लगता है कि मैं दुनिया की नज़र में कैसी भी हूँ, in my mom's eyes I'm the hottest, smartest, most clever person alive. Yes. मतलब मैं अपने आप को उस नज़र से देखना चाहती हूँ जिन नज़रों से मेरी माँ मुझे देखती है. 100%. Yeah. True. क्योंकि हर मेरे पोस्ट पे मेरी मम्मी का लाइक होता है, हर उस पे रीपोस्ट होता है. मेरी मम्मी मेरे सारे दोस्तों को फॉलो करती है. शी जस्ट लव्स टू बी पार्ट ऑफ माई लाइफ समहाउ. In the entire society, now that we have discussed it, how it is always dreaded upon कि आप अपनी मम्मी जैसे बन जाओगे. What do you think about it, that the society that dreads it so much, that like कोई acceptance नहीं है, अगर आपकी मम्मी तरह आप बन रहे हो तो सबसे lowest form of compliment है. तो what do you think about that? मुझे ऐसा लगता है यार मेरे लिए तो अब जेन्युइनली इट इज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज लाइक आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ माई मॉम, आई हैव द रेज ऑफ माई मॉम एंड आई हैव द रेजिलियंस ऑफ माई मॉम एंड दीज 3 थिंग्स आर लुक डाउन अपॉन वुमेन. अगर यही चीजें एक आदमी में होती तो वो आदमी एक रॉक स्टार कहलाया जाता. बट यही चीजें एक औरत में है तो अरे वो तो घर मतलब यू नो शी इज समबडी हू वांट्स टू क्रिएट ट्रबल और व्हाटएवर. तो मुझे लगता है कि ये सारी क्वालिटीज आई हैव इम्बाइब्ड एंड दैट इज द रीजन आई एम एबल टू बी द पर्सन आई एम टुडे. I'm so vocal, I'm so verbose, I'm so like, you know, open about who I am and so unabashed about who I am. So I feel like the reason I am able to imbibe these qualities is because somewhere like my mother was so fearless about it. Yeah. What do you think? यार माई मॉम एंड आई आर वेरी डिफरेंट पीपल, सो इट्स अ ग्रेट डायनामिक. क्योंकि हम और मैं और मेरी मम्मी जब बात करने बैठते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव दुनिया और लाइफ को लेकर बिल्कुल अलग होता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट हम दोनों को मस्ती करनी है. एक्सेप्ट फॉर द मस्ती पार्ट एवरीथिंग इज डिफरेंट. और मुझे बचपन से पहले जब लगता था ना कि नहीं बनना है ऐसा और ये नहीं करना है, नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट्स आई एम ओके विद नॉट बीइंग लाइक माई मॉम एंड because I'm a continuation of her. Yeah. I'm a sequel of her and I'm allowed to be different. I'm allowed to be better in terms of like, you know, she doesn't want this for myself. Like अब दुनिया में तुम जितना भी, जैसे मेरी घरवाले जैसे जो घरवाले जो है ना, जो थोड़े ऐसे हैं जो मेरी मम्मी के सीधेपन को सोचते हैं कि बताओ कितनी adjusting है. My mom is famous in the entire family because she is so adjusting. And I don't want that adjective for myself. And my mom doesn't want that adjective for me. Yeah. You know, so like I think she worked really hard for me to not be in certain sense like her, and I think that worked. And actually my mom taught me to decenter men. You know, like through her हाँ, actions. मैंने मम्मी से कभी बात ही नहीं करी. हाँ, तो मेरी मम्मी हमेशा ऐसी थी कि बेटा never make a man the most important thing in your life. And she just said it in so many other ways that I was like, yeah, that is so true. जब मुझे ऐसे इनिशियली वैसे स्कूल वूल टाइम पे जैसे होता है ना कि थोड़ा लड़के वड़के के बारे में पता चलता है और ये होता है, मेरी मम्मी ने इसलिए ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि मतलब उन्होंने हल्का सा मुझे ऐसे देखा कि मुझे लगा तुम इन सब चीजों में नहीं हो, लाइक यू आर बेटर देन दैट टाइप. तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ओह शादी वादी के टाइम पे लाइक एट एन एज अप्रोप्रिएट शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन माय लव लाइफ, बट उससे पहले शी वाज ऑलवेज डिस्करेजिंग, नॉट बिकॉज शी डिडंट वांट मी नियर बॉयज और एनीथिंग, बट शी जस्ट डिडंट वांट मी टू सेंड लाइक थिंक ऑफ लाइफ विद अ मैन इन इट. है ना? हाँ, आई थिंक दैट वे, यस. Yeah. So now we have a quick rapid fire segment about our mothers on Mother's Day. What's the most mom thing your mom says on repeat? जिस दिन मेरी लाश यहाँ पर बिछी होगी उस दिन मैं देखूंगी तेरे कितने आंसू टपकते मेरे ऊपर. जब मैं नहीं रहूंगी ना तब तुम्हें समझ आएगा. क्या समझ आएगा? In different languages. Yeah. One sentence your mom has said that lives rent free in your head. तुम बताओ पहले ये. बीपी, मेरा बीपी बढ़ रहा है. मैंने कहा मम्मी बीपी नहीं है आपको. और बढ़ रहा है, लो हो रहा है, एक ही सिम्टम है, आपको कैसे पता? Exactly. That पापा क्या सोचेंगे? पापा. That's your husband, not mine. Something your mom does that used to annoy you, but now you do it too. यार मैं ना थोड़ा माइक्रो मैनेज करती हूँ, मेरी मम्मी भी करती थी ऐसे. मैं समझ सकती हूँ घर में गंदगी हो तो कितना बुरा लग सकता है जो इंसान उसको रेगुलरली साफ करता हो. सो दैट आई थिंक वन ऑफ दैट हैबिट. My mom's very short tempered.
तो मुझे ऐसा लगता था मम्मी किसी बात पे फट जाती है, मुझे लगता है आई अंडरस्टैंड. व्हाट्स योर मॉम्स मोस्ट आइकॉनिक लाइन? मुझे क्या फर्क पड़ता है, करो तुम्हें जो करना है. हाँ. पूछते क्यों हो फिर? हाँ, वापस आके मत बोलना मम्मी आप सही थी. मत पूछो ना मुझे. Yeah. One lie you told your mom that she definitely knew was a lie. मम्मी मैं चांदनी के साथ बाहर जा रही हूँ. Oh yeah. मैं आ जाऊंगी 10 बजे तक. Yeah. मम्मी मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ. Traits you inherited from your mom that you love? Traits, her boldness, her bindas, way of living life, and her smile. Aw, Yeah. that's sweet. Traits you wish you had inherited from her? Her resilience, मतलब just dusting yourself off and getting Yeah. back up. मैं थोड़ा defeat को बहुत hard लेती हूँ. True. मतलब बट क्योंकि मम्मी का वो प्रोटेक्शन है ना, इसलिए मम्मी पापा का प्रोटेक्शन में लोग हार्ड लेते भी हैं. Yeah. What about you? आई थिंक मैं थोड़ी एडजस्टिंग हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि But मैं I किसी think को भी, मतलब instead of adjusting, I would say कि तुम दूसरों के बारे में सोचती हो. हाँ मतलब मेरी मम्मी भी बहुत थॉटफुल है और Yeah. मैं भी दूसरे को मैं कॉन्स्टेंटली किसी और के जूते पहन के चलती हूँ हमेशा. एंड समटाइम्स व्हेन पीपल अराउंड यू आर नाइस एंड लव यू एंड नो दिस अबाउट यू एंड डोंट टेक एडवांटेज ऑफ इट, Exactly. आई थिंक पीपल लव मी फॉर दैट. Yes, एंड आई लव माई मॉम फॉर दैट, क्योंकि वो कितना सोचती हैं सबके बारे में. एंड वन थिंग आई विश आई हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हर, कि वो किसी भी चीज से ना वो बहुत जल्दी ऐसे निकल जाती हैं. यू नो वो मतलब लेट गो कर सकती हैं चीजों को. मैं बहुत पकड़ के बैठती हूँ, मुझे पता है, मुझे बोलती भी हैं कि मतलब छोड़ दो भाई, 20 साल पुरानी, पापा ने 20 साल पहले थप्पड़ मारा था, बस जाने दो उस बात को. Yeah. लेकिन मैं पकड़ के बैठती हूँ एंड शी लेट्स इट गो. बट लाइक बहुत बहुत प्यार और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है टू लेट गो ऑफ थिंग्स, people who have wronged you and everything, but you let go of it because आप बिंदास हो, That's आप मस्त true. हो, आपको अपना कोरियन शो देखना है, उसके आगे आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है. I love Yeah. that. Soumya's mom is obsessed with Korean K-dramas. So like you know that kind of thing, Yeah. that like किसी भी एज में कुछ नया सीखने का जो उनका रहता है, क्योंकि उनको दुनिया अवॉइड करनी है. Yeah, so we would quickly want to wrap up this Mother's Day podcast with final thoughts that you would like to say to your mom. अरे यार मम्मी आई लव यू. और नो मम्मी आई लव यू, आई रियली एडमायर यू. आई होप मैं बड़े होके आपकी जैसी बन पाऊँ, और आई होप हम ऐसे 100-200 साल एक साथ रहें, मतलब Yeah. हैंड इन हैंड हमेशा. Yeah, मम्मी मेरी उम्र आपको लग जाए, to be honest. मतलब Okay. मैं Girl, you आपको, deserve it. you cannot have one wrinkle. Every time I see mom and I see a wrinkle, I'm like, no. मम्मी आप डरमैट के पास चलो. मम्मी का अब मम्मी का कभी ऐसे हाथ कांपता है ना किसी चीज पे, मुझे एकदम से हिट होता है कि मेरी मम्मी की उम्र हो रही है यार. Yeah. पापा की तो चलो ठीक है, पापा की ठीक है, पापा मैनेज कर लेते हैं. Yeah. मम्मी की उम्र कितनी हार्ड हिट होती है It यार. hits you very hard. क्योंकि मम्मी डजंट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ आल्सो, लाइक Yeah. दैट इज द प्रॉब्लम. Exactly. कि ये आपको ज्यादा लगेगी. सो या So we want to quickly wrap up the podcast by once again thanking Everlight by Senko for sending us such beautiful jewelry that we styled for this podcast and you can also check it out. They have really nice dainty pieces that you can use as everyday wear. They're so elegant and we would like to just insert a few close-up shots of this so you can really see how blingy and sparkly they are, yet Yeah. so understated and Yeah. elegant at the same time. Like you will send across a statement but in the best way. एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर सो दे सजेस्टेड दिस टॉपिक एंड आई एम सो ग्लैड यू डिड, क्योंकि हमें भी नहीं पता था हमारे अंदर इतनी डीप कॉन्वर्सेशन है अबाउट our fate as becoming our mothers. Yeah, and thank you so much for watching us on Shut up. We're Talking. मैं मर जाऊंगी उसके बाद मेरी आवाज सुनाई देगी तुम लोगों को.